اس کا مطلب بھی یہی ہے، پاکستان ہوگا تو اسلام بھی ہوگا، جب پاکستان نہیں ہوگا تو اسلام کہاں سے ہوگا؟ میں آپ کی بات سمجھ گیا، آپ میری اب بات سمجھے، وہ پاکستان کے اندر اقلیتیں رہتے ہیں، اگر ان کا بھی یہی ذہن ہو کہ ہمارے لیے ہمارا مذہب پہلے ہے اور پاکستان پیچھے ہے، تو پھر اقلیتیں جو ہے نا وہ پاکستان کو وہ بھی سوچتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے پاکستان عزیز ہے، پہلے پاکستان بعد میں ہمارا نہیں، مذہب۔ ان کے لیے پہلے پاکستان لیکن ہمارے لیے پہلے اسلام، یہ کون سا انصاف ہے پھر؟ انصاف نہیں ہے، لیکن ہمارے ہم اگر اس پہ بات کریں نا تو لوگوں نے پھر اور الٹا مطلب لینا شروع کر دیں۔ پاکستان کا مقصد تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دین اسلام پر تو بنایا کیوں گیا اس تھا۔ کے اوپر ابھی تک عمل درآمد کیوں نہیں ہو سکا؟ پاکستان کے اندر ابھی تک کوئی اسلامی نظام کیوں نہیں ہے؟ سودی نظام چل رہا ہے نا۔ دیکھیں، ہم کہتے تو یہ ہے کہ ملک کے اندر اسلام ہونا چاہیے، ہمیں اسلام ہمارے لیے پہلے، تو ہمارے ملک کے اندر ابھی اسلامی قانون نہیں، ابھی تک یہ 75 سال ہو گئے۔ جو حالات چل رہے ہیں میرے خیال میں پیٹ کی ٹینشن بھی پہلے ہی آ گئی ہے۔ جو حالات اس وقت چل رہے ہیں، جس نہج پہ پاکستان پہنچ گیا ہے، تو میرے خیال میں یہ بھی لوگوں کی بڑی ٹینشن ہو گئی کہ ایک ٹائم کی روٹی 2 ٹائم کی روٹی مل جائے، یہ بڑی ایک بندے نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ بھوکے کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، جس کو بھوک لگی ہے نا اس کو پہلے یہی فکر ہوگی میں نے خود کیسے کھانا اور اپنے بچوں کو کیسے کھلانا، اور باقی ساری چیزیں بعد میں چلی جاتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اندر سے مسلمان نہیں باقی جتنے بھی ممالک ہیں وہاں کے جو لوگ رہنے والے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارا وطن پہلے۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو آپ دیکھیں نا، آپ مسلمان ہیں، ہم سارے الحمدللہ مسلمان ہیں، جو یہاں کے ہندو رہنے والے ہیں، جو یہاں کے عیسائی رہنے والے ہیں، سکھ ہیں، وہ بھی اگر یہی بولیں کہ ہمارے لیے ہمارا مذہب پہلے ہے، تو پھر پاکستان کا کیا بنے گا؟ مذہبی پہلے پاکستان کا بھی سوچنا چاہیے سب کی۔ پاکستان کی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ پہ بنی، 21 رمضان المبارک میں ہمارا پاکستان وارث وجود میں آیا ہے۔ دوسرا جو ہمارا سیاسی نظام ہے یہ سارا کا سارا کرپٹ ہو چکا ہے، سارا کا سارا۔ وہ اس کو چور کہتے ہیں، وہ اس کو چور کہتے ہیں، وہ اس کو چور کہتے ہیں، کوئی نہیں ہے۔ اچھا، نظام کرپٹ ہے یا ہم ویسے ہی کرپٹ ہیں سارے؟ ہم تو کرپٹ ہے ہی ہیں، لیکن نظام دیکھو، جب ایک سیٹ جس کو نظام تو ہم ایسے، آپ کی میں بات کاٹ رہا ہوں، نظام کو ہم خراب تب بولے نا کہ دنیا کے اندر یہ نظام خراب ہو چکا، پوری دنیا کے اندر یہی جمہوری نظام ہے، لیکن وہاں پر یہ صحیح چل رہا ہے، ہمارے ملک میں کیوں نہیں صحیح چل رہا؟ لیکن بھائی آپ یہ دیکھیں۔ ہیلو اینڈ ویلکم فرینڈ، میں ہوں مظفر چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پرفیکٹ ایکشن۔ دوستو، آج ہم پاکستانی لوگوں سے پوچھیں گے کہ ان کے لیے نیشن فرسٹ یا ریلیجن فرسٹ، اور دنیا کے باقی ممالک میں لوگ کس کو آگے رکھتے ہیں، کس کو فرسٹ رکھتے ہیں، یہ بتائیں گے ہم آپ کو ویڈیو کے لاسٹ میں۔ لیکن پہلے ہم جانتے ہیں پاکستانی پبلک سے کہ ان کے لیے اپنا ملک، اپنا وطن پہلے ہے یا اپنا مذہب پہلے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں پبلک کی جانب اور ان کی رائے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام سر؟ محمد شعیب۔ آپ کا نام؟ محمد سیاض۔ اچھا سر، آج آپ سے ہم سوال یہ کریں گے کہ بحیثیت پاکستانی آپ کے لیے یہ ملک سب سے پہلے ہے یا اسلام پہلے ہے؟ کیا رائے ہے آپ کی؟ دیکھیں، دین اسلام میں سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ پر عقائد۔ دین اسلام، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی خاطر سب سے پہلے مکہ سے ہجرت کی تھی، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے دین ہے، پھر ہمارا اپنا ملک پاکستان ہے، جان مال ہر چیز ہے، سب سے زیادہ عزیز ہمارا ملک پاکستان۔ بڑی اچھی بات کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے مثال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ مکے کو مخاطب ہو کے بولا تھا، آپ کو مجھ سے زیادہ علم ہے، انہوں نے کہا تھا کہ میں تجھے یاد کرتا ہوں، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑتا اگر مکے کے لوگ مجھے تنگ نہ کرتے۔ تو دیکھیں نا، انہوں نے تنگی کی وجہ سے، میری رائے یہی ہے کہ انہوں نے مکے کے لوگوں سے تنگ آ کر مکہ چھوڑا تھا، اس وجہ سے نہیں چھوڑا تھا کہ مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سارے راستے تنگ کر دیے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے نبی تم کیا کرو، ہجرت کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرتیں 2 ہیں، ایک ہجرت حبشہ ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینہ کی طرف۔ تو مکے کو یاد کرتے تھے نا، اپنا وطن ان کو یاد تھا نا، کہ وہ ہر وقت ان کو مس کرتے تھے۔ بلکہ جب مکہ فتح ہوا اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اظہار کیا کہ اگر یہ میرے حالات تنگ نہ کرتے تو میں مکہ کو کبھی نہ چھوڑتا۔ اچھا، یہ بتائیں کہ ہمارے لیے پاکستان پہلے نہیں ہونا چاہیے؟ جس طرح پاکستان کے حالات ہیں تو ہمیں پاکستان کو ترجیح نہیں دینی چاہیے؟ ہمارے لیے پاکستان ہے تو ہم ہیں، اگر پاکستان نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں۔ جتنی بھی غیر مسلم ریاستیں ہیں وہ پاکستان کو نہیں چاہتی،
वो पाकिस्तान के अंदर जितनी आज़ादाना अवाम है वो इनको नहीं चाहती, इसलिए हमें अपने बच्चे माल जान हर चीज़ कुर्बान करके सबसे पहले पाकिस्तान को तो बचाना। हजरत पाकिस्तान बनने का मकसद क्या था, आप ये बताएं। पाकिस्तान का मकसद था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, दीन इस्लाम पर बनाया तो बनाया क्यों गया इसके था। ऊपर अभी तक अमल दरामद क्यों नहीं हो सका? पाकिस्तान के अंदर अभी तक कोई इस्लामी निज़ाम क्यों नहीं है? सूदी निज़ाम चल रहा है ना। देखिए, हम कहते तो ये है कि मुल्क के अंदर इस्लाम होना चाहिए, हमें इस्लाम हमारे लिए पहले, तो हमारे मुल्क के अंदर अभी इस्लामी कानून नहीं, अभी तक ये 75 साल हो गए। देखें, जब तक हम रियासत मदीना यानी कि शरीयत के अहकाम हैं उन पर जब तक हम अमल नहीं करेंगे हम इसी तरह जलील व ख्वार होंगे। देखो आजकल पाकिस्तान के अंदर क्या कानून है, कुछ कानून नहीं है। गरीब के लिए और कानून है, अमीर के लिए और कानून है। वही अमीर ज्यादती करता है, वो बिल्कुल अदालतों से बरी जिम्मा जा रहा होता है, गरीब को हथकड़ियाँ लगी होती हैं। यहाँ अमीर और गरीब के लिए एक ही कानून होना चाहिए और दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर कोई चोरी करता है तो उसका हाथ काटा जाए और शरेआम काटा जाए, चौक चौराहों पे काटा जाए। अगर कोई जिना करता है, शादीशुदा है, तो उसको रजम किया जाए। अगर गैर शादीशुदा है तो उनको उसको कोड़े मारे जाए। जब इस तरह के अहकामात जारी होंगे तो इंशाअल्लाह हमारा मुल्क तरक्की भी करेगा और हम तरक्की की तरफ गामजन भी। अगर एक सवाल और आपसे ये कि दुनिया के जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अमेरिका लगा लें, यूरोप लगा लें, वो सारे गैर इस्लामी कंट्रीज हैं और वहाँ पर इस्लामी कानून भी नहीं है। तो उसकी क्या वजह है कि वो मुल्क हमसे बहुत ज़्यादा तरक्की पर हैं? उनकी वजह ये है, वो सिर्फ उनके अंदर ईमान नहीं है, उनके अंदर सिर्फ दीन नहीं है, यानी वो उन्होंने सिर्फ कलमा मुसलमान नहीं नहीं, पढ़ा हुआ। कलमा नहीं पढ़ा। बाकी वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला की मिसालें भी देते हैं और उन जैसा निज़ाम भी बनाते हैं। वो आइडियल हजरत उमर को बनाते हैं, हम आइडियल गैर मुस्लिम को बनाते हैं, जिसकी वजह से हम जलील अखबार हो रहे हैं। तो फिर आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की इस वक्त खराबी की मेन वजह क्या है? कि मुल्क के अंदर इस्लामी कानून नहीं है या हमारी तरजीह इस वक्त पाकिस्तान नहीं है? हमारे मुल्क के अंदर सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि एक तो हम दीन से दूर हैं, दूसरा जो हमारा सियासी निज़ाम है ये सारा का सारा करप्ट हो चुका है, सारा का सारा। वो उसको चोर कहते हैं, वो उसको चोर कहते हैं, वो उसको चोर कहते हैं, कोई नहीं है। अच्छा, निज़ाम करप्ट है या हम वैसे ही करप्ट है सारे? हम तो करप्ट हैं ही हैं, लेकिन निज़ाम देखो, जब एक सीट जिसको निज़ाम तो हम ऐसे आपकी मैं बात काट रहा हूँ, निज़ाम को हम खराब तब बोले ना कि दुनिया के अंदर ये निज़ाम खराब हो चुका। पूरी दुनिया के अंदर यही जमहूरी निज़ाम है, लेकिन वहाँ पर ये सही चल रहा है, हमारे मुल्क में क्यों नहीं सही चल रहा? लेकिन भाई आप ये देखें, अगर एक इलाके का SHO SP ईमानदार हो तो उस इलाके में किसी को जुर्रत नहीं होती। जब हमारी सीटों पे जितने अफसरान बैठे वो ठीक नहीं है तो ऑटोमेटिक आवाम बुरी होती जाती है। जब आपका ऊपर का निज़ाम बेहतर हो तो नीचे का निज़ाम ऑटोमेटिक बेहतरी की तरफ जाता है। घर का एक सरबराह अगर गंदा है तो उसके दूसरे अहल व याल भी बुरे बनेंगे। अगर घर का एक अहल व याल मैन फर्द अच्छा है तो दूसरों को बुराई करने की हुक्म तो क्या, उसको जुर्रत भी नहीं आती। इसलिए सबसे पहले हमारे जो ऊपर वाले हैं वो जब बेहतर होंगे तो हमारा निचला निज़ाम खुद ब खुद बेहतरी की तरफ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा हाई साहब, आज आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपके लिए मुल्क पहले है या मजहब पहले है? पहले तो मजहब पहले है, मुल्क तो बाद में है। पहले आजकल तो नफ्स नफ्स की इधर दौर है, तो अल्लाह कहता नहीं मुल्क इस्लाम ये पीछे छोड़ जाते हैं। सिर्फ अपना पेट भरने के लिए हर बंदा इस सिलसिले में लगा है। यही वजह है मेरे ख्याल में पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा कि हर बंदा यहाँ पर नाम तो यही लेता है कि मजहब मेरे लिए पहले है या मुल्क मेरे लिए पहले, लेकिन उस पर अमल नहीं करता। अमल नहीं होता, यही बात है, अमल नहीं करते। तो भाई साहब, आप माशाल्लाह काफ़ी उम्र है, आप ये बताएं कि अगर ये इस्लामी मुल्क है पाकिस्तान, आप देखें ना इस्लाम के नाम पर बना है, और इसमें अभी तक इस्लामी कानून क्यों नहीं आया थे? होना चाहिए, यह कानून नाफिज होना चाहिए इस्लामी। पर जो सरबराह भी आता है मुल्क का वो भी नहीं सोचता। इसकी पकड़ होगी इनकी, देख लेना रोज क़यामत वाले दिन इनकी पकड़ होगी। तो भाई साहब ये बताएं कि बाकी जो मुल्क हैं दुनिया के, उनमें इस्लामी कानून नहीं है, वो इस्लाम के नाम पर भी नहीं बने, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की कर दी। उसकी क्या वजह समझते हैं आप? वो पता क्या है, गैर मुस्लिम है, उनको मजहब का तो पता ही नहीं है इस्लाम होता या नहीं वो होता। अपने वतन को, अपने मुल्क को मुल्क को आगे रखते हैं। जो भी उनका है ना वो तो टाइम के भी पाबंद है। ये मुसलमान
टाइम के पाबंद नहीं, चाहे 8 बजे जाना 10 बजे, अपना वादा पूरा नहीं करते। नहीं करते। तो फिर ये क्या आप समझते हैं कि वो कौमें हमसे इसलिए आगे हैं कि वो उनका हर काम ठीक है, हमारे काम ठीक नहीं है, यही बात है। हमारा अमल कोई नहीं है इस्लाम अमल में। होता तो सही होता, अमल तो है ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम बॉस। आपका नाम सर? सोराब खान। अच्छा खान साहब, आज आपसे ये पूछेंगे कि आपके लिए वतन पहले है या मजहब पहले है? मेरे लिए तो इस्लाम पहले है, मज़हब पहले है, उसके बाद वतन है। अगर ज़ाहिर है इस्लाम होगा तो उसके बाद आप अपना कोई मज़हब, कोई भी मज़हब है वो इख्तियार कर लेंगे, एक आज़ादी होगी, उस पर आपको इबादत की, बाकी चीज़ों की आज़ादी होगी। तो मेरे ख्याल में फिर पहले मज़हब है, इस्लाम है, उसके बाद फिर हम देखें पाकिस्तान जो बना है वो मज़हब के नाम पे ही बना है पाकिस्तान में, लेकिन मज़हब नाम की चीज़ कोई नज़र नहीं आती, ना हमारे जो इस्लामी कानून है मुल्क के अंदर, ना ही हमारी बैंकिंग का सिस्टम देखें वो भी सूदी सिस्टम चल रहा है। तो कहाँ पर देख रहे हैं, अगर हम मज़हब का नाम तो ज़रूर लेते हैं लेकिन ना उस पर मैं अमल करता हूँ, ना आप अमल करते हैं और ना ही हमारी गवर्नमेंट अमल करती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब देख लें हालात तो ऐसे हैं कि मतलब जो चीज़ें हमें करनी चाहिए वो हम कर नहीं रहे, और जो लोग गैर मुस्लिम को करनी चाहिए वो हम लोगों ने अपनाई हुई हैं। जो गैर मुस्लिम की जो जितने भी रवायात हैं, जितने भी, वो देख लें आपको हमारे हुज़ूर पाक की उसकी सुन्नत पे चल रहे हैं, उस पे चल के उन्होंने कितनी तरक्की कर ली, साइंस में, टेक्नोलॉजी में कितना ऊपर चले गए हैं। हमने वो चीज़ें सारी छोड़ दी हुई हैं। जो उनके फंक्शन हैं जितने भी हैं, आप देख लें सारा कुछ उनकी रवायत को हमने अपना के हम नीचे से नीचे जा रहे हैं। बाकी मुल्क और कंट्री देख लें आप कि वो सारा कुछ इस्लाम, हमारे इस्लाम से सीख के बिल्कुल ऊपर जा रहे हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन उनका वो कहते हैं कि जी हमारे लिए वतन पहले, मुल्क पहले है। जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी यही राय है कि जी वतन पहले है और बाकी मज़हब बाद में है। उनकी प्रायोरिटी इसलिए भी हो सकती है ना कि वहाँ पे लोगों का ये रहन सहन, आप देख लें उनका ख्याल, उनका जो इंसानी हुकूक है उनकी पासदारी की जाती है। मेरे ख्याल में तो शायद इस वजह से वो कह रहे होंगे कि जी उनका सबसे पहले मुल्क है, उस चीज़ की पासदारी उनकी बदल। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में तो आप देख रहे हैं ओवरऑल हालात ऐसे चल रहे हैं कि आप हर बंदा मतलब आए दिन कुछ ना कुछ वो परेशानी है, टेंशन में ही है। इस्लाम है, बिल्कुल है, इस्लाम से अभी एक दोस्त से साहब से बात हो रही थी, उन्होंने उनका कहना ये है कि हमारे लिए ना मज़हब पहले है, ना हमारे लिए वतन पहले है, हमारे लिए पेट पहले है। अब ये सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर बन गई है। जो हालात चल रहे हैं मेरे ख्याल में पेट की टेंशन भी पहले ही आ गई है। जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, जिस नहज पे पाकिस्तान पहुंच गया है, तो मेरे ख्याल में ये भी लोगों की बड़ी टेंशन हो गई कि एक टाइम की रोटी, 2 टाइम की रोटी मिल जाए, ये बड़ी एक बंदे ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि भूखे का कोई मजहब नहीं होता। जिसको भूख लगी है ना उसको पहले यही फिक्र होगी मैंने खुद कैसे खाना और अपने बच्चों को कैसे खिलाना, और बाकी सारी चीजें बाद में चली जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब अब इसमें कसूरवार तो देखें ना, फिर वहाँ पे हमारे जो हुक्मरान तबका है, बाकी ऊपर लेवल के जितने भी लोग हैं, कसूर उनका है। उन्होंने किसी साइड पे हमें लगाया ही नहीं है, ना इस्लाम को किसी सही जगह पे लगाया अच्छा, उन्होंने। इसमें कसूर किस उलमाए कराम का कसूर है, हमारे पाकिस्तान के अंदर हमारे हुक्मरानों का कसूर है, अवाम का कसूर है, किसका ज्यादा समझते हैं? इसमें कसूर में वार तकरीबन सारे बराबर ही हैं। मेरे ख्याल में इस्लाम के नाम पे हम बंद हो गए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमे के नाम पे पाकिस्तान बंद हो गया है, लेकिन उस पर अमल पैरा नहीं हो रहे। अभी कोई भी उस पर अमल पैरा नहीं है, चाहे वो हुक्मरान देख लें, उलमा इकराम देख लें आप, वो भी वो लोगों को उससे तलकीन नहीं कर रहे। जितना अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए उतनी नहीं कर रहे हैं। तबलीगी जमातें, बाकी लोग हैं, अवेयर कर रहे हैं। बड़े बड़े उलमा कराम हमारे 2-3 ही है ना जिनके नाम मैं अब यहाँ पर लेना मुनासिब नहीं समझूंगा, लेकिन उन्होंने भी कमाई की है ना। वो कोई मुल्क से बाहर बैठा है चंदे इकट्ठे करके, और कुछ मुल्क के अंदर है वो भी पावर में ही रहता है। यानी इस तरह देखे ना 2-3 बड़ी बड़ी मिसालें आप मेरे समझ गए होंगे मैं किनका नाम लेना चाह रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। वो भी मतलब ज्यादा प्रायोरिटी तो उनकी भी है, अपना कोई माल चाल बनाए तो बस ठीक है जी, काम चलता रहेगा। बाकी ओवरऑल देख लें अगर, तो मेरे ख्याल में ना कसूरवार हुक्मरान तबके का भी है। वो उन लोगों ने इस नहज पे यहाँ पे ले आए हैं कि दुनिया देखें, बाकी दुनिया के ममालिक आप देख लें कितनी तरक्की हो रही है, किधर जा रहे हैं, किधर से किधर जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो आपके हालात ये हैं कि इस नहज पे आ गए। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये कि दुनिया के अंदर जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें इस्लामिक कंट्री एक भी नहीं है। उसकी क्या वजह है कि हम इस्लाम को पहले तो रखते हैं लेकिन तरक्की जो है वो दूसरे ममालिक कर रहे हैं?
तरक्की इसी वजह से है ना, देखिए आप, मतलब एक आपकी प्रायोरिटी ही नहीं है, हमारी प्रायोरिटी पहले होनी चाहिए थी इस्लाम। इस्लाम के बाद जो है बाकी प्रायोरिटी, ठीक है मुल्क हमारा है लेकिन उस प्रायोरिटी में तो इस्लाम पहले होना चाहिए। ज़ाहिर है इस्लाम होगा, इस्लामी तालीमात पे हम अमल करेंगे, नमाज रोज़ा हज ज़कात, उससे आपने जैसे बात की कि सूद, अब देखें हर बैंक वाला आपको ऑफर कर रहा है जी मेरे पास आ जाए, मैं इतना आपको ये दूंगा, ऐड करना है इतना, मतलब परसेंटेज हर बंदा अपनी अपनी ऑफर कर रहा है। वो सूदी निज़ाम है ना, सूदी निज़ाम से तो हम बचने की कोशिश कर नहीं रहे। जितना भी ओवरऑल बाकी निज़ाम आप देख लें, बाकी जितना भी है आप सारा चीज़ें देख लें, ओवरऑल इस्लाम से तो हम बिल्कुल दूर चले गए हैं, मेरे ख्याल में बहुत ही दूर चले गए हैं। हालांकि हमें ऐसा करना नहीं चाहिए, हुक्मरान तबके को भी सोचना चाहिए ओवरऑल। और बाकी जो हमारे एलीट क्लास है, जो ऊपर की क्लास है, जो इनके पास अथराइज्ड हैं, जो पावर में हैं, जो सब कुछ कर सकते हैं, उनको मेरे ख्याल में इस बारे में सोचना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? मेरा नाम इम्तियाज़ अली खोखर साहब। अच्छा इम्तियाज़ साहब, आज आपसे हम सवाल जो करेंगे वो ये है कि नेशन फर्स्ट और रिलीजन फर्स्ट, यानी कि आपके लिए मज़हब पहले है या वतन पहले है? हमारे लिए पहले मज़हब, उसके बाद सबसे पहले पाकिस्तान। यानी आप कहते हैं कि इस्लाम आपके लिए पहले है। हाँ जी। तो अगर इस्लाम पहले है तो हम देखें ना, ये पाकिस्तान के बनने की वजह क्या थी कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो आप समझते हैं कि मुल्क के अंदर जो जिस मकसद के लिए बना था, इस्लाम के नाम पर बना था, पाकिस्तान के अंदर वही सिस्टम वो निज़ाम मौजूद है? वो निज़ाम बिल्कुल मौजूद नहीं है। उसमें रीज़न ये है कि जो हमारे मौलाना हज़रात साहब है ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जब तक ये ठीक नहीं होंगे पाकिस्तान का निज़ाम ठीक नहीं होगा। तो निज़ाम इन्होंने बनाना है, मौलाना ने बनाना है? हाँ जी, इनका बड़ा, मौलाना साहब का बहुत अहम किरदार होता है। जो मौलवी हजरात होते हैं, इनका पाकिस्तान में बहुत बड़ा किरदार होता है। जब कोई आफत ज़दा कोई इस तरह का मसला मसाइल होता है तो पहले इनको तंजीमों को इकट्ठा करते हैं। जो मौलवी हजरात हैं जितने भी हैं, इनको इकट्ठा करके इनसे राय ली जाती है कि इसका क्या हल निकालें। तो हमें ज़्यादातर तो यही होता है कि हमें पता होता है कि जो हमारे मौलाना साहब हैं या मस्जिद इमाम मस्जिद है, उन्होंने नमाज़ पढ़ानी है, उन्होंने बच्चों को कुरान हिफ्ज़ कराना है, यहाँ तक कि महदूद है ना। बाकी जो कानून बनाना है वो तो हमारे जो नुमाइंदे बैठे हैं, असम्बलियों में बैठे हैं, वो तो उनका काम है ना। मौलाना साहब का ये बड़ा इसमें अहम किरदार है कि ये लोगों को जाके बताएं, असम्बलियों में जाएं, वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस करें, इस्लामी कॉन्फ्रेंस करें, उनको बताएं कि ये काम करने चाहिए पाकिस्तान के लिए। पहले इस्लाम के काम लोगों को ठीक करें, करप्ट निज़ाम को ख़त्म करें, ईमानदारी इस्तेमाल करें, सूद का निज़ाम ख़त्म करें। मौलाना साहब जो है ये खुद सूद में मुलव्वस है। पाकिस्तान के निज़ाम में खराबी में सबसे इनका बड़ा किरदार है। ये कि क्योंकि एक पार्टी बन के रह जाते हैं, इनको पार्टी नहीं बनना चाहिए, इनको इस्लाम का मुसलमान होना चाहिए। सबसे पहले में इस्लाम और पाकिस्तान है। अच्छा, आपने इस्लाम की बात की, दुनिया के अंदर आप देखें कि जितनी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जितने भी, हम अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, दीगर जो, वो सारे गैर मुस्लिम हैं। तो आप नहीं समझते कि जो गैर मुस्लिम हैं वो हमसे आगे हैं? हम इस्लाम का नाम लेकर हम पीछे क्यों हैं? उसकी वजह क्या है? उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने कुरान पाक से सब कुछ सीखा है, हमने कभी कुरान पाक से नहीं सीखा। सब कुछ जो दुनिया में है वो कुरान पाक के अलावा कुछ भी नहीं है। वो उस पर अमल करते हैं, हम लोग अमल नहीं करते। हम दिखावे का कुरान पाक की तिलावत करते हैं, उसका मायने नहीं समझते। जब हम उसका मायने समझ गए, समझो कि हम उनसे आगे चले जाएंगे। ये रीज़न है उन मुल्कों की। उन्होंने पूरा इस्लाम पे, हमारे पे अमल किए हुआ है, हम लोग अमल नहीं करते। हम अमली मुसलमान बने हुए, अंदर से मुसलमान नहीं। बाकी जितने भी ममालिक हैं, वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, वो यही कहते हैं कि हमारे लिए हमारा वतन पहले। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आप देखें ना, आप मुसलमान हैं, हम सारे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। जो यहाँ के हिंदू रहने वाले हैं, जो यहाँ के ईसाई रहने वाले हैं, सिख हैं, वो भी अगर यही बोलें कि हमारे लिए हमारा मज़हब पहले है, तो फिर पाकिस्तान का क्या बनेगा? मज़हब ही पहले, पाकिस्तान का भी सोचना चाहिए। सबकी पाकिस्तान की बुनियाद क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह पे बनी। 21 रमज़ान मुबारक में हमारा पाकिस्तान वारस मौजूद में आया है। इसका मतलब भी यही है, पाकिस्तान होगा तो इस्लाम भी होगा, जब पाकिस्तान नहीं होगा तो इस्लाम कहाँ से? नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। आप मेरी अब बात समझे हो, पाकिस्तान के अंदर अक़लियतें रहते हैं, अगर उनका भी यही ज़हन हो कि हमारे लिए हमारा मज़हब पहले है और पाकिस्तान पीछे है, तो फिर अक़लियतें जो है ना, वो पाकिस्तान को वो भी सोचते हैं। वो भी कहते हैं कि हमारे लिए पाकिस्तान अजीज है, पहले पाकिस्तान बाद में हमारा मज़हब। उनके लिए पहले पाकिस्तान लेकिन हमारे लिए पहले इस्लाम, ये कौन सा इंसाफ है फिर? इंसाफ नहीं है। लेकिन हमारे हम अगर इस पे बात करें ना, तो लोगों ने फिर और उल्टा मतलब लेना शुरू कर देना कि यार ये तो इस्लाम के बारे में इसने ये बोल दिया। इसका रीज़न यही है बस, और कोई रीज़न नहीं है। इसलिए हम अवॉइड करते हैं ज़रा पहले पाकिस्तान का नाम लेने से, वरना हालांकि पाकिस्तान है तो हम हैं। यानी आप कहते हैं कि दोनों चीज़ें ही ज़रूरी है, हमारे लिए इस्लाम भी ज़रूरी है, जितना इस्लाम ज़रूरी है उतना ही हमारे लिए पाकिस्तान पाकिस्तान ज़रूरी है।
हम लोग इस चीज़ से पीछे हट गए हैं। हम लोग ना नमाज पढ़ते हैं, ना कुरान पाक की तिलावत करते हैं, बल्कि हम गलत मसलों में फंसे हुए हैं। रात को हम देखें चाय पी रहे हैं, कैफे में बैठे हैं, जब नमाज का टाइम होता है हम लोग सो जाते हैं। हमें हमारी ज़िंदगी होगी है कुत्तों की तरह, क्योंकि कुत्ता जो सारी रात जागता है वो भी नमाज के टाइम सो जाता है, क्योंकि इसी वजह से वो रहेंगे। हम भी वही लोग हैं ना। देखिए आप सत्याना रोड पे चले जाएं, जहाँ भी चले कैफे है, लोग बैठे हैं। फजूल बैठे ना, यही टाइम जो मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल करें, कोई ऐसा काम करें जिससे मुल्क को भी फायदा हो, इनको भी फायदा हो। फजूल में बैठे हैं, ताश खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, ये कोई काम तो नहीं है। चाय पीते हैं वहाँ पे खुशगपियाँ जिन लगा रहे हैं, कौमों ने तरक्की करनी होती है वो 24-24 घंटे काम काम करते करते हैं, हैं, जो और यहाँ पर 24 घंटे जो है वो फजूलियात के अंदर। फजूलियात में गुजार देते हैं। बस यही मसला है यहाँ पे। हम लोग दीन से बहुत दूर हैं। यानी ना तो हम दीन के हैं ना हम वतन के हैं, यानी दोनों चीजें हमने इग्नोर की हुई इग्नोर हैं। किए, हम उनसे दूर हैं, पीछे हट गए इससे। जब हम इस चीज़ के करीब चले जाएंगे, अल्लाह ताला हमारी खुद ऑटोमेटिकली हमारी गायबाना मदद होनी शुरू हो जाएगी। अगर यहाँ पे कोई बंदा ईमानदार आता है उसको आने नहीं देते, कहते हैं ये तो सबसे बुरा आदमी, इसने ये बात कर दी, अब ये यहूदी झंडा बन गया, इसको ये बना दिया। ये चीज़ें जो हमें ना दीन इस्लाम पाकिस्तान से दूर लेके चले गई हैं। हम लोग बाहर की तारीफें करते हैं, उनकी मिसालें देते हैं, पहले अपनी मिसाल दें जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे हम जीते हैं। हमारे मुल्क जैसा दुनिया में कोई मुल्क नहीं है। यहाँ पे 4 मौसम है, हमारी ज़िंदगी आसान है। वहाँ पे तो ज़िंदगी भी मुश्किल है, जहाँ की ये लोग मिसालें। जो आजकल के हालात हैं यहाँ पर जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है। भाईजान जब हम ये चीज़ें इग्नोर कर देंगे ना तो हमारी ज़िंदगी भी यहाँ पे आसान हो जाएगी। हमारी बहुत ज़िंदगी यहाँ पे खूबसूरत है। अब हम बाहर जाते हैं ना, वहाँ पे हमें कपड़े धोने पड़ते हैं, मेहनतें करते हुए, मुश्किल से खाना मिलता है, 2 काम ही काम है। यहाँ पे कितनी खूबसूरत अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, 4 मौसम दिए, हम खुशगवार हैं, जहाँ मर्जी जाएं आए, हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। वहाँ पे ये ज़िंदगी है। वहाँ पे तो उनके रहने वाले शहरियों की ज़िंदगी नहीं है, वो भी अपनी वो क्या कहते हैं कानून में रह के ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो यानी कि हम कानून से बाहर हमारी जिंदगी आसान है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये नहीं कहना चाह रहे कि यानी कि यहाँ पे हमारी जिंदगी इतनी यहाँ पर आसान देखे है। ना, कोई बंदा कानून पे अमल दरामद करता ही नहीं है। इशारे पे जाके देख ले, ट्रैफिक सिग्नल पे देख ले, कोई बंदा नहीं रुकेगा यहाँ पर। मैंने ये बात नहीं कि, मैंने इसलिए कहा है कि यहाँ पे हमारी जिंदगी खूबसूरत है, हमारी आज़ाद है, हम इस्लामी मुल्क है, इस्लामी भाई है सब आपस में। लेकिन यहाँ पे हमें पूछने वाला कोई नहीं है। लेकिन अमल दरामा में कानून पे जब करेंगे तो हमारी ज़िंदगी और भी आसान हो जाएगी, हमें किसी चीज़ की मुश्किल नहीं होगी। बात ये। थैंक यू जी। तो दोस्तों अभी आपने लोगों की राय जानी। पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि उनके लिए इस्लाम पहले है। तो हमें इस पर अमल की भी ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर अगर पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है, लेकिन इस पर अमल दरामद ना तो आवाम करती है और ना ही हुकूमत करती। आज तक मुल्क के अंदर 75 साल होने को है तो मुल्क के अंदर इस्लामी कानून नाफज नहीं हो सका। हमारा जो जितना टोटली सिस्टम है वो सूद के ऊपर चलता है। तो जिस हमें ये आधा तीतर आधा बटेर के साथ मेरे ख्याल में हम तरक्की नहीं कर सकते। हमें या तो बिल्कुल पूरे के पूरे, जैसे कहते हैं कि पूरे के पूरे दीन में दाखिल हो जाओ, तो या फिर आप जैसे दुनिया की बाकी कौमें तरक्की कर रही हैं, अपने वतन को पहले रख रही हैं, तो उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। हमें मिसालें तो हम देते हैं कि जी दूसरे ममालिक तरक्की कर गए हैं, तो उनकी तरक्की के पीछे वजह क्या है, उनके पीछे उनकी मुकम्मल तौर पर अपने मुल्क के साथ लॉयल्टी है और अपने काम के साथ वो मुखलिस हैं जो भी काम करते हैं। हमारे यहाँ पर मोस्टली लोग यही हैं कि जो भी अपनी फील्ड जो जिस फील्ड में भी होते हैं वो उसमें मुकम्मल तौर पर मेहनत और ईमानदारी के साथ काम नहीं करते। तो यही वजह है कि आज तक पाकिस्तान जो है वो बाकी कौमों से पीछे है और तरक्की नहीं कर सका। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, अपने ऊपर इस्लाम को नाफज करने की ज़रूरत है, तभी हम तरक्की कर सकते हैं और अपने मुल्क को, अपने वतन को आगे ले जा सकते हैं। इसके साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।